Yes, good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So, today we will start a new topic, that is geometry. We will start the geometry portion. So, in learn about triangle especially. इससे पहले हमने पिछले क्लासेस में एडवांस अलजेब्रा के बारे में हमने पढ़ा। ओके, एडवांस अलजेब्रा से पहले हमने सिंपल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जो कि अलजेब्रा का पोर्शन था। ओके, सो अब हम ज्योमेट्रिक का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रॉम टुडे अब हम अगले कुछ क्लासेस में 3 या 4 क्लासेस में हम ज्योमेट्री का पोर्शन कवर करेंगे। सो बेसिकली आज सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल से रिलेवेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद ट्राइंगल जब खत्म होगा देन वी विल मूव टू द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में जब आप 7th 8th में पढ़े होंगे व्हाट इज पैरेललोग्राम, व्हाट इज रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट। ओके, तो हम क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम, तो ये सारी चीजें हम क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक्स में कवर करेंगे। ओके, then next we will move to the mensuration. In mensuration we will discuss about the how to find area of two-dimensional figure, and then further we will move to the area and volume of the three-dimensional figure, जैसे कौन की एरिया, कौन की कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कौन की वॉल्यूम, फ्रस्टम की वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबाइड। तो ये सब टॉपिक्स हम सबसे आखिरी में करेंगे। सो ये हमारा टोटल ज्योमेट्री का है। मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक फिगर बना रहे कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द ट्राइंगल, then we will discuss about the quadrilateral, then mensuration. In mensuration first we will discuss about the 2D mensuration, then 3D. Okay, so this is the portion of the geometry. So geometry से questions पूछे जाते हैं। so बीच बीच में जहां जहां जिस टॉपिक से मिलेंगे वो क्वेश्चंस में बीच बीच में स्लाइड में शामिल करूंगा। ओके, यस। सो यस, सो सबसे पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल के बारे में आप जानते होंगे कि ट्राइंगल क्या होती है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ट्राइंगल का। सो अ ट्राइंगल is a closed figure having 3 sides and 3 vertex. Okay, this is the first side, second side, and third side. And similarly, it have 3 angles: first angle, second angle, and third angle. Okay, so a triangle have 3 sides, 3 angles, and also 3 vertex. It is a closed figure, and the sum of the all anterior angle of a triangle is 180 degree. ये आप क्लास 6 अथवा 7 में, क्लास 6 में आप पढ़े होंगे। ये तीनों एंगल का सम क्या होगा? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 degree. Okay, so this is very basic concept. So we will start our discussion from the geometric center. Geometric center. Okay, so basically there are 4 types of geometric center: centroid, orthocenter, incenter, and circumcenter. You can write on your notebook about the types of geometric center. There are 4 types of geometric center. First one is centroid, second one is orthocenter, third one is incenter, and fourth one is circumcenter. सेंट्रॉइड हम उसे कहते हैं जब ट्राइंगल की जो मेडियंस होती है, मींस अगर तीनों साइड को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट में, तो जो मेडियंस जहां पे मीट करेगी उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ऑर्थोसेंटर हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड of the triangle. Since a triangle have 3 sides, so each sides having its height or each sides having its altitude. So if we draw all 3 altitude of a triangle, then they meet at a common point, and that common point is called as orthocenter. I will again discuss one by one. Third point is in center. Okay, so in center is
It is the intersection point of all the angle bisector. Okay. If you bisect the angle, suppose here are three angle. This is the let us give the name. This is A, B, and C. Okay. So let us suppose if you divide angle A into two equal part, C into two equal part, and angle B into two equal part, then they meet at a common point. They will meet at a common point. Okay. And this common point is called as in center. इसे हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर. ये आप ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये आप क्लास 7 के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर्स में आप पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में ही है. ओके. सो इन सेंटर इज व्हाट? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर. देन नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर. ओके. तो यहाँ पे इन सेंटर में क्या थी? इंटरनल एंगल की जो बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर. ओके. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज सर्कम सेंटर. ओके. सो सर्कम सेंटर क्या होती है? So this is a triangle. So if uh, there are three sides of this triangle. Okay. इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स है? देयर आर, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है. तो अगर तीनों साइड्स को आप क्या करोगे? मीन्स इस साइड को मैंने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इस साइड्स को मैं टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और इस साइड को भी मैंने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. ओके. तीनों साइड्स को हमने क्या किया? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब इस पॉइंट से हम 90 डिग्री, वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री. ओके. वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री. थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो यहाँ से उतनी अच्छी ड्राइंग आपको नहीं दिख रही होगी. सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंड दिस इज 90 डिग्री. This point is called as circumcenter. This point is called as circumcenter. Okay. This point is called as circumcenter, means it is the intersection point of all the perpendicular side bisector. Okay. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इन सेंटर में हमने एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे होती है उसे हम बोले, उसे हमने क्या नाम दिया? इन सेंटर. नाउ intersection point of all the perpendicular side bisector. Okay. Means this is side bisector का मतलब, bisect का मतलब to divide into two equal part. So this is the perpendicular bisector, this is the perpendicular bisector, and this is also a perpendicular bisector, and all the perpendicular bisector of the side meet at a common point, and that common point is called as circumcenter. So these are these four are geometric center. इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. सेंट्रॉइड, orthocenter, incenter, and circumcenter. Now I am going to discuss one by one in details. So the first one is centroid. Okay. So अगर बीच में कुछ नेटवर्क की इशू होगी तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा. ओके. और you can also unmute yourself and tell that there is some issue in the network. Okay. आप माइक ऑन करके भी मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि कुछ नेटवर्क की इशू है मेरे एंड से. सो अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड के बारे में. ओके. सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? सो दिस इज अ ट्राइंगल. सो इफ वी डिवाइड, हाँ, सो दिस इज द ट्राइंगल.
तो centroid is what? Centroid is the intersecting point of all the medians. So let us suppose this ये this point divides this side into two equal part. Let मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ए बी एंड सी. ओके. This red mark divides side BC into two equal part and this divides side AC into two equal part. ओके. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पॉइंट को एंगल सी सी वर्टेक्स पे मैच करेंगे, इस पॉइंट को बी वर्टेक्स पे मैच करेंगे और इस पॉइंट को ए वर्टेक्स पे ले जाएंगे और मैं इसे कर रहा हूं. सो इस पॉइंट और सी वर्टेक्स को मैं मैच कर दिया, बी वर्टेक्स को और एसी का जो बाइसेक्टर है उसको मैंने मैच कर दिया और बीसी की जो बाइसेक्टर है उसे मैंने ए से मैच कर दिया. थोड़ा सा सिंस आई एम ड्राइंग विथ फ्री हैंड सो इट इज लिटिल बिट नॉट स्ट्रेट. यस. सो मैंने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले आई हैव डिवाइडेड ए बी इंटू टू, BC into two equal part and CA into two equal part and mark with the red. This is the let D E F. Okay. So F is the bisecting point of AB. D is the bisecting point of side BC and D is the bisecting point of the side AC. Okay. अब इस पॉइंट से अपोजिट एंगल को जब हम मैच करेंगे, when they meet at a common point, this common point is called as centroid. This common point is called as centroid. So अभी मैंने आपको ऑर्थो सेंटर भी बताया, फिर अभी मैं ऑर्थो सेंटर भी बताऊंगा. सो ऑर्थो सेंटर में क्या होती थी कि यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाते थे, यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाते थे. अगर ये क्या होगी? 90 डिग्री होगी तो ये पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा. और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये जो ये जो यहाँ पे सेगमेंट है, ये यहाँ पे पॉइंट, ये वर्टेक्स बी पे मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है. ओके. सो नाउ वी आर discussing about the centroid. So the centroid is the intersection point of all the medians of a triangle. Centroid is the of all the medians of a triangle. It divides in the medians into 2:1. Okay. Let us suppose ये AD की जो लेंथ है, ये 3 सेंटीमीटर की है. ओके. दिस AD इज 3 सेंटीमीटर. दिस AD इज ऑफ 3 सेंटीमीटर. सो दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड. ओके. सो दिस पॉइंट इज C. मैंने इस पॉइंट को C नाम दिया. सो ये AC का पार्ट क्या होगा? 2 होगा और नीचे CD का पार्ट क्या होगा? D. AC is to CD is equal to 2:1. Means centroid divides medians into two equal parts. Centroid divides median into two equal part. Okay. Centroid divides median into two equal part. ये centroid की प्रॉपर्टी है. You should note down on your notebook that it divides median into two equal parts. This is the second property of centroid. And the third property is एक मिनट. हाँ. सबसे यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? रेशियो ऑफ, लेट अस सपोज दिस इज AM is to MD is equal to 2:1. 2:1 means
medians divides in the ratio 2:1. ये जो centroid divides the median into ratio 2:1. Second property is that triangle is divided into 6 triangle of equal area. So how many triangles are there? There are 6 triangle. This is the first triangle. BMD is the first triangle. DMC is the second triangle. CME is the third triangle. EMA is the fourth triangle. AMF is the fifth, and FMB is the sixth triangle. Okay. So the area of all the 6 triangle will be equal. Okay. Area of all 6 triangle will be equal. All 6 triangles are equal. मीन्स मेडियंस अगर आप तीनों ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ 3 मेडियंस, ओके, तो आपको कितने ट्राइंगल मिलेगी? यू विल गेट 6 ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ द ऑल ट्राइंगल विल बी इक्वल. सपोज आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है कि अगर आपको क्वेश्चंस में अगर दिया गया है कि the area of this part is 3, area of this part is 3 square unit, then you have to find the area of the whole triangle. Then simply you can multiply by 6 and you will find the area of whole triangle, that is 6 into 3, that is 18 square unit is the area of the triangle. So centroid is what? It is the intersecting point of all the medians. The first property is centroid divides the medians into ratio 2:1. ओके, अगर AD की लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो AM का लेंथ ऊपर में इतना दूर क्या होगा? 2 का होगा और नीचे में क्या होगा? 1 होगा. ये आपके समझने के लिए है. 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है. एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ all the 6 triangle are equals. So this is all about the centroid. Now we will move to the ortho center. अब हम ortho center के बारे में पढ़ेंगे. So only 2 persons are there. So okay, सिर्फ ओके. सो इट इज 9:21. कुछ देर हम और टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, चूंकि आप 2 ही लोग हैं अभी ज्वाइंट. सो पूरा क्लास डिस्कस करना उचित नहीं होगा बिकॉज टुडे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक. सो ज्योमेट्री पोर्शन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं बेसिकली. इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ज्योमेट्री पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो दिस इज द सेंट्रॉइड. नाउ वी विल मूव टू द ऑर्थो सेंटर. सो व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? सो टू अंडरस्टैंड ऑर्थो सेंटर, लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल. मेरे साथ आप भी ड्राइंग करते जाइएगा. जो भी अगर आपको अगर कुछ नोट करने की इच्छा होगी, देन यू कैन ऑल्सो नोट ऑन योर नोटबुक सो डेट आपका नोट रेडी रहेगा. सो दिस इज अ ट्राइंगल ABC. ABC is a triangle. Okay, ABC is a triangle. So orthocenter is the intersection point of all the altitude of the triangle. It is the intersection point of all the altitude of a triangle. Okay, so this is first altitude, this is second altitude, and this is third altitude. Okay, so यहाँ पे altitude का मतलब ये क्या होगा? It will be 90 degree. It will be 90 degree. It will be 90 degree. Let us suppose it is D, E, and F. Okay. So orthocenter is, it is the intersection point of all the altitude of the triangle. आप इसका definition, you can write definition that मैं repeat कर रहा हूँ. It is the intersection
intersection points of all the altitude of the triangle. Okay, this is the intersection point of all the altitude of the triangle. Okay, so this point is called as orthocenter. This point is called as orthocenter. Since our topic is geometric center, okay, सो सेंटर का मतलब कुछ एक पॉइंट होगा, जैसे हमने सेंट्रॉइड में देखा कि एक पॉइंट मिला हमें, कौन सा पॉइंट था, ये था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मेडियंस, उसे हम क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड. सिमिलरली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द अल्टीट्यूड और हाइट यू कैन ऑल्सो से मीन्स एडी. एडी इज द हाइट ऑफ साइड, हाइट फॉर द साइड बीसी. BE. BE is the height for the side AC. Similarly, FC is the height for the side AB. So in a triangle, there are three altitudes can be drawn. Okay, means प्रत्येक साइड के लिए एक हाइट एक ट्राइंगल में ड्रॉ की जा सकती है. Okay, so orthocenter is the intersection point of all the altitude of the triangle. सो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का आपने डिफिनीशन देखा, कैसे ऑर्थो सेंटर आप फाइंड करते हैं वो आपने देखा. अब हम ऑर्थो सेंटर का एक हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं. दैट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम अगेन ड्रॉइंग अ ट्राइंगल. आई एम अगेन ड्रॉइंग अ ट्राइंगल. ओके, सो ओके, मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे हटा रहा हूँ. ओके, आप इसी फिगर में आप यहाँ पे देख के समझ लीजिएगा. सो ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय O. ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय O. यहाँ पे मैं O से ऑर्थो सेंटर को डिनोट किया हूँ. ओके, सो ऑर्थो सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज एंगल BOC प्लस एंगल A is equal to 180 degree, is equal to 180 degree. Okay, this is the property of the orthocenter. मीन्स BOC कौन सी एंगल हुई, BOC ये वाली एंगल हुई. ओके, एंड A एंगल इज A एंगल ये हुई. दिस इज द BOC एंड दिस इज द एंगल A. सो द सम ऑफ BOC and the angle A should be 180 degree. I can also prove this, but if you are interested to get the proof, तो आप टेक्स्ट बुक देखिएगा कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे. ओके, सो एंगल BOC प्लस एंगल A इज 180 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पे और भी यहाँ पे दूसरे केस भी हम ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम AOC लेंगे, AOC प्लस एंगल B इज ऑल्सो 180 डिग्री. अगर हम AOC प्लस एंगल B विल बी ऑल्सो 180 डिग्री. मीन्स तीन यहाँ पे केस बनेंगे बिकॉज. और इसी तरह आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे AOB plus angle C is equal to 180 degree. Means this is AOB plus angle C. मीन्स जो आप एंगल ले जो यहाँ पे आप एंगल ले रहे हो. ओके, मीन्स दो मेडियन हाँ, दो अल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपने लिया, फिर उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वो एंगल लिया, एंड द सम इज 180 डिग्री. So this angle is what? This angle is AOB. So this angle is AOB plus angle C is equal to 180 degree. So basically आप एक को याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा. ओके, सो ऑर्थो सेंटर में बस आपको इतना ही पढ़ना है कि सबसे पहले ऑर्थो सेंटर का डिफिनीशन क्या हो जाता है.
It is the intersection point of all the altitude of the triangle, and the second point is angle BOC plus angle A is equal to 180 degree. Angle BOC plus angle A is 180 degree. Okay. So you have to remember this. ये आपको याद रखना पड़ेगा. एंगल BOC plus angle A is equal to 180 degree. नाउ ये हमने सेंट्रॉइड देख लिया, ऑर्थो सेंटर देख लिया कि व्हाट इज ऑर्थो सेंटर. नाउ आई एम गोइंग टू मूव इन सेंटर. तो जैसे हम आपने ऑर्थो सेंटर में देखा एंगल BOC प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री. सो सिमिलरली वी हैव अ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इन सेंटर. ओके, बट वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. मीन्स दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट बहुत लोग क्या करते हैं ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी इन सेंटर में लगा देते हैं, इन सेंटर का ऑर्थो सेंटर में सोच लेते हैं. इससे क्या हो जाता है, मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ओके, सो द थर्ड geometrical center is in center. The third geometrical center is in center. So to understand in center, first draw a triangle. So this is a triangle. Okay, so this is the triangle ABC. This is the triangle A, B and C. This is angle A, this is angle B and this is angle C. Okay, so yes, so if I bisect all these three angles, if I bisect angle A, if I bisect angle B and if I bisect angle C, then the bisector of angle A, B and C will meet at a common point, and that common point is called as in center. Okay, means you can note down the definition that intersection point of all the angle bisector is called in center. It is the intersection point of all the angle bisector. So I am going to draw. So this is the angle bisector of angle A. This is the angle bisector of angle B, and this is the angle bisector of the angle C. Okay, means I am going to name AD, BE and CF. Okay, so this angle is equal to this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle, because AD is the angle bisector of angle A. Bisect का मतलब क्या होता है, two equal part, to divide into two equal part. So AD is the angle bisector of the angle A. So this angle is equal to this angle. Okay. Similarly, BE is the angle bisector of angle B. So this angle will be equal to this angle. And CF is the angle bisector of angle C. So this part will be equal to this part. And all the angle bisector meet at a common point. All the angle bisector meet at a common point, and that common point is called as in center and denoted by I. Okay, means angle A की जो angle bisector थी वो AD है. The angle bisector of angle B is BE, and the angle bisector of angle C is CF, and they all meet at a common point I. All meet at a common point, and that common point is called as in center and denoted by I. Okay, so I is the in center. So in center का definition आप क्या बोलोगे, it is the intersection point of all the angle bisector. मैं definition पे इसीलिए stress दे रहा हूं क्योंकि अगर आपको definition याद रहेगा तो आप geometric center में you will not confuse, आप अपने आप को confuse नहीं पाओगे.
So there are some property of in center. So I'm going to write the property. So angle BIC is equal to 90 plus half angle A. So this is the property of in center. मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूं कि कैसे ये प्रॉपर्टी आई. So this is the angle BIC. This is the angle BIC and this is the angle A. This is angle A. Okay. So angle BIC is equal to 90 plus half A. Means अगर आपको एंगल A दी हुई रहेगी then you can find BIC, and if BIC is given then you can find the angle A. This is the property of the in center. अगर आप इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड होंगे तो आप टेक्स्ट बुक में जाकर के देखिएगा, और ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन गूगल about the property of derivation of the property of in center. You can simply find it on by net surfing. Okay, so the property is angle BIC is equal to 90 plus half A. Similarly, angle CIA is equal to 90 plus half B, and BIA, angle BIA is equal to half 90 प्लस हाफ एंगल C. जैसे हमने ऑर्थो सेंटर के केस में थ्री केसेस हमने देखा, सिमिलरली इन द केस ऑफ इन सेंटर यहाँ पे भी जैसे एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए, सिमिलरली CIA इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ B, एंड BIA इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल C. ओके, जैसे अगर BIC का मेजरमेंट आपको जैसे अगर आपको एंगल ए का मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 80 दिया गया है, देन यू कैन फाइंड BIC. इफ एंगल ए इज 80 देन यहाँ पे आप 80 पुट करोगे, 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40, 90 प्लस 40 is 130. So the measurement of angle BIC will be 130 if the measurement of angle A will be given as 80 degree. Okay. So इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इससे पहले आपने ऑर्थो सेंटर पढ़ा. ऑर्थो सेंटर क्या होती थी? It is the intersection point of all the altitude of a triangle and the angle BOC plus angle A is 180 degree. So ये प्रॉपर्टी शायद आप नोट डाउन किए होंगे. इसके बाद हमने क्या देखा? इन सेंटर के बारे में पढ़ा. सो इन सेंटर इट इज द intersection point of all the angle bisector. It is the intersection point of all the angle bisector. So मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं. सो अगर आप ये दोनों चीज समझे होंगे देन यू कैन हाँ, मैं एक आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करिए. सो यहाँ पे मैं आपको एक ट्राइंगल दिया. ओके, दिस इज अ ट्राइंगल एंड this is ortho center. This is ortho center and this is in center. Okay, this is ortho center and this is in center, and the triangle is A B C. Triangle is A B C, and it is given that angle BOC is equal to 112 degree. 112 degree. Then you have to find angle BIC. आपको BIC फाइंड करना है. यू हैव आपको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं. मैं आपको फिर से डिक्टेट करता हूं. ABC इज अ ट्राइंगल, O इज द ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर क्या होती थी? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द अल्टीट्यूड, एंड
it is the in center. In center is the intersection point of the angle bisector. Given that the measurement of orthocenter is 112 degree, and you have to find the measurement of in center. Okay. So क्वेश्चन फाइंड, इसका आंसर फाइंड करके चैट बॉक्स में आप आंसर करें। एक चीज आप याद रखो कि अभी हम ज्योमेट्रिक सेंटर पढ़ रहे हैं, हमने दो ज्योमेट्रिक सेंटर के बारे में पढ़ा, नहीं, थ्री ज्योमेट्रिक सेंटर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज सेंट्रॉइड, सेकेंड वन इज ऑर्थो सेंटर एंड थर्ड वन इज इन सेंटर। यह जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट एक ही जगह पे मिले। जैसे इस केस में ऑर्थो सेंटर कहीं और पे है और इन सेंटर कहीं और पे है, ये कब मिलेगा we will study later in the case of equilateral triangle. So please solve this question. You have to find the measurement of the angle BIC and the angle BOC is given. O is the ortho center and I is the in center. Okay, I'm going to see the chat box that anybody have answered or no. 124. Okay. 124. Okay. सो सॉल्व करते हैं, कितना आंसर है, शायद आई थिंक 124 इज द राइट आंसर। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सो अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा कि इफ हमें कौन सी एंगल दी गई है, बीओसी इज गिवन, एंगल बीओसी इज गिवन, ओ इज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में हम जा रहे हैं। सो एंगल बीओसी प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। ओके, सो एंगल बीओसी हमें कितना दिया है, 112 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो यहां से आप एंगल ए फाइंड करोगे, 180 माइनस 112 विच इज 68। ओके, सो यहाँ पे आपको एंगल ए का वैल्यू आ गया 68। मीन्स आपने एंगल ए का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया, दिस इज 68। ये आपने कैसे फाइंड किया, बिकॉज देर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड दिस एंगल। मीन्स एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सॉरी 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज 112, ये क्या था 112 एंड this is 68। so 68 plus 112 is 180। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इन सेंटर और ये वर्टेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज बी आई सी और ये क्या है, दिस इज द एंगल ए। सो बी आई सी इज इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस हाफ ए। बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए। एंगल ए हमें कितना प्राप्त हुआ, 68। हमने एंगल ए को 68 फाइंड किया। सो 234 एंड 90 प्लस 34 इज 124। सो 124 इज right answer. So this angle will be 124, 124। So this is a simple but tricky question। अगर आपको हाँ, अगर आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ओके,
ओके, सो यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग बचे हैं। इट इज 9:44 PM। सो आज की क्लास के लिए हम डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। मे बी ड्यू टू द वेदर इशू कम लोग ज्वाइन किए होंगे, हमारे तरफ भी मानसून आ चुकी है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सर्कम सेंटर। सबसे पहले हम सर्कम सेंटर डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एरिया हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में भी आपका ट्राइंगल टॉपिक ही चलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़ा, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी कोल्ड है तो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। ओके, so if you have any question then you can ask, otherwise we will end the class here. So I'm going to stop the presentation.